So in the previous lecture we had studied till modern methods of irrigation. Today we will see the fifth step of agricultural practices, that is protection from weeds. Now there is one term, weeds. What are weeds? You must know the meaning of weeds. Weeds are the undesirable, unwanted plants which grow in the field along with the main crops. Such type of undesirable plants are called weeds. And the removal of weeds is called weeding. So underline the definition of both weeds and weeding. Weeding is necessary. अभी फार्मर्स लोग जब क्रॉप्स लगाते हैं तो उन्हीं क्रॉप्स के बीच में कुछ ऐसे भी प्लांट्स हो जाते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता. दीज आर अनडिज़ायरेबल यूजलेस प्लांट्स. तो फार्मर्स हैव टू रिमूव दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स एंड रिमूवल ऑफ दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स और वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग. क्योंकि अगर ये प्लांट्स ग्रो हो गए तो ये वीड्स भी सॉइल से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, फिर ये भी सनलाइट लेंगे, ये स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, जबकि ये है किसी काम के नहीं. So they have to be removed from the field, and this removal is done either by manual using some farming implements or by some machine or by using some chemicals. So removal of weeds is called weeding. And why is weeding necessary? Because these weeds compete with the main crop plants for water, nutrients, space and light. So they may affect the growth of the main crop, so they have to be removed from the field. Now what are the methods for removing these weeds? First is tilling. Tilling before sowing of crops helps in uprooting and killing of these weeds. This is the first method. Then second, weeds can be removed either by physically, that is done with the help of khurpi, which is a farming implement. Seed drill can also be used for uprooting these weeds. Weeds are also controlled by using chemicals. These chemicals are called weedicides. Example of weedicides is 2,4-D. So these chemicals are sprayed in the field to kill only the weeds. They will not damage the main crops. So they will not harm, they will not damage the main crops, they will kill only the weeds. So weeding. Then this is the fifth step in agricultural practices, protection from weeds. Now sixth step, there are total 7 steps in agricultural practices. Seventh step is harvesting. How will you define harvesting? Harvesting is the cutting of crop after it is mature is called harvesting. So underline the definition of harvesting. जब भी फसल पक जाते हैं तो वो फसल पकने के बाद जब उसको काटते हैं, पक जाना मतलब मैच्योर हो जाना, एकदम तैयार हो गया है फसल, तो उसको काटने की ज़रूरत पड़ेगी. एंड दिस इज़ नोन एज हार्वेस्टिंग. दिस इज़ द सिक्स्थ स्टेप ऑफ एग्रीकल्चरल practice. Again, harvesting is done either by manually using some farming implements such as sickle or by a machine called harvester. Now after harvesting, in those harvested crops, the grain seeds are separated from the chaff. अभी अनाज के ऊपर छिलके रहते हैं तो उन अनाज के ऊपर से छिलकों को हटाने की ज़रूरत पड़ती है. This separation of chaff from the grain is called threshing. Again, this threshing is done with the help of a machine called combine, which is a combination of harvester and thresher. So this is the machine combine. It is used for threshing, removal of separation of chaff from the grains. After harvesting, sometimes stubs are left in the field. जब पूरी फसल कट जाती है तो उसके बाद फिर भी थोड़े बहुत वो स्टेम्स वगैरह रह जाते हैं जो फार्मर्स लोग जला देते हैं. It causes pollution. The burning of these stubs cause pollution. It may also catch fire and damage the main crops lying in the fields after harvesting. So this is. Now
अभी जिन किसानों के पास छोटी ज़मीन है, जो बहुत पैसे वाले नहीं है, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, जिनके पास बस स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड है, अभी उनको दे डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चैफ बाय विनोइंग. दे कैनॉट अफोर्ड मशीन. दीज मशीन्स आर वेरी expensive, so they cannot afford machine. So what do they do to remove the chaff from the grain? They use the method of winnowing. Now what is winnowing? Tell me the answer. The removal of chaff from the grain by the current of wind, that is called winnowing. Now there are some harvest festivals in our country. हमारे देश में हैं कुछ ऐसे फेस्टिवल्स जिसमें क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग की जाती है. नाउ व्हाट आर दोज फेस्टिवल्स? अंडरलाइन ऑल द फेस्टिवल्स नेम. पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्या एंड बिहू. दीज आर द हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. नाउ द लास्ट स्टेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इज स्टोरेज. अब जब फार्मर बहुत खुश हुआ, इतने अच्छे फसल उसके खेत में हुए, अब जब उसने हार्वेस्ट कर ली, वो बहुत खुश हुआ अपने अनाजों को देख के. नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ टू स्टोर दीज क्रॉप एंड वेयर टू स्टोर. कहाँ पे स्टोर करें और कैसे स्टोर करें, क्योंकि उनको ये क्रॉप ग्रेन्स को बहुत दिनों तक रखना भी है. So if the crop grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture. अभी ये क्रॉप्स ख़राब ना हो. अभी ख़राब किससे होते हैं? मॉइस्चर से. पानी अगर लग जाएगा तो ख़राब हो जाएंगे. अगर गलती से इंसेक्ट्स ने अटैक कर दिया तो सारे ग्रेन्स ख़राब हो जाएंगे. रैट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सो दे मे डैमेज द क्रॉप्स. ऐसे भी जब फसल काटते हैं तो वो एकदम ताज़े फसल में ऐसे भी पानी होता है. तो इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, तो अगर बिना उन पानी को हटाए, बिना सुखाए, अगर वो क्रॉप्स को हम लोग ऐसे ही स्टोर कर देंगे या फार्मर्स अगर ऐसे ही स्टोर कर देते हैं तो वो सारे ख़राब हो जाएंगे और दे मे अटैक बाय ऑर्गेनिजम्स लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी. सो बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर फर्स्ट ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम. स्टोर तो बाद में करेंगे, पहले तो फसल को जो उन्होंने काटा, जो हार्वेस्टिंग हुई, उसके बाद वो फसल ऑलरेडी गीला है तो पहले तो उसको सुखाना पड़ेगा, उनको खूब धूप में दिखाना पड़ेगा, तब जाके उसके बाद ही वो अलग अलग जगहों पे स्टोर करेंगे. चाहे वो बड़े बड़े कंटेनर्स में हो या गोडाउन्स में हो, गनी बैग्स में स्टोर करके रखें, कहीं पे भी रखें, क्योंकि उनको प्रोटेक्ट तो करना ही पड़ेगा रैट से, इंसेक्ट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, पेस्ट से, बैक्टीरिया से, फंगाई से. फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स. अभी स्टोरेज कहाँ कहाँ पे करते हैं फार्मर लोग? फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स, या तो गोनी में या फिर मेटल के बड़े बड़े बिन्स होते हैं उसमें, अगर वो थोड़ा कम अमाउंट में है तो. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अनाज है then they store in silos and granaries. This is the diagram of silos for storage of grains. बहुत बड़ा होता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब ग्रेन्स होते हैं तो उनको फिर सिलोज में, ग्रेनरीज में स्टोर करके रखा जाता है. हम लोग घर में, चूँकि हमारे घर में तो ज़्यादा बहुत अनाज हम लोग ला के रखते नहीं हैं, 5 kg 10 kg इतना रहता है, तो उसमें कीड़े ना लगे तो हम लोग उसमें नीम के पत्ते डाल के रख देते हैं ताकि उसमें कीड़े ना लगे. एंड फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स वी यूज़ गोडाउन्स. तो फिर गोडाउन्स में अगर बहुत ज़्यादा अनाज है तो गनी बैग्स में अनाज को भर के बड़े बड़े गोडाउन्स में रख दिया जाता है. अभी गोडाउन में भी चूहों का डर रहता है, इंसेक्ट्स का डर रहता है, तो वहाँ पे फिर केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है. तो पहले ही वो लोग केमिकल दे देते हैं so that the grains are protected from pests and microorganisms. Many people living in coastal areas, they consume fish as a staple food. तो जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, जो समुद्र के पास रहते हैं, उनका तो मेन खाना ही होता है फ़िश. फ़िश तो उनको मिलता ही है.
नाउ एनिमल्स आर रियर्ड एट होम और इन फार्म्स। अभी फार्मर लोग एनिमल्स भी रियर करते हैं, घर में भी लोगों को शौक होता है जानवर पालने का। सो दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। तो अगर फार्मर्स एनिमल रियर करते हैं या अगर घर में हम लोग कोई पेट एनिमल रखते हैं तो जैसे हमको एनिमल्स का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे फार्मर लोग क्रॉप्स का ध्यान रखते हैं, क्रॉप्स का केयर लेते हैं, ठीक उसी तरह एनिमल्स का भी उतना ही केयर लेना पड़ेगा। उनको फूड भी देना पड़ेगा, उनको शेल्टर भी अच्छा सा देना पड़ेगा और उसके बाद उनको केयर भी, अगर कुछ डिजीज़ हुआ तो उनको हमको एनिमल्स के डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, वेटरिनरी डॉक्टर के पास भी लेके जाना पड़ेगा। तो व्हेन एनिमल्स आर रियर्ड ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल husbandry. Underline the definition. Now fish is good for health. Why? We get cod liver oil from fish and this cod liver oil is rich in vitamin D. तो हमको इससे विटामिन डी मिलता है. So this is the end of the chapter, first chapter.